Amrita. So hello everyone, welcome to the YouTube live session of Sattva Talk. As we all know, Sattva Talk is a channel created by Mr. Abhishek Ranjan Veer, who has initiated this channel to create an awareness among the people of the society to lead a stress-free life and how to be in a state of happiness at every situation of life. Basically, it's the mission of our Gurudev, Sri Ravi Shankar ji. His vision is this, and to carry forward his vision is our mission. So let's look forward for the session. And as we all know, today our honorable guest is Dr. JP Singh. Though we don't need any introduction about Sir, because we have already attended 2 sessions of him, and we have already come to know that he's an amazing human being, and we had a great opportunity to interact with him and solve a lot of our queries, but there is a lot to be more solved. So we have invited him once again. और जो नए हैं इस चैनल पे उनके लिए सर के लिए एक इंट्रोडक्शन दोबारा से. So our guest, honorable guest, is today Dr. JP Singh. Dr. JP Singh is a senior consultant neurologist and fellow American Academy of Neurology with 25 years of experience based in Chandigarh, India. He is associated with Art of Living since 2008. He teaches happiness program, Yes Plus, and Sahat Samadhi meditation. His area of interest is scientific basis of Sudarshan Kriya, meditation, and brain. He has vast experience and visited 26 countries for neurology as well as spirituality as a faculty. He regularly conducts Art of Living program and has taken session at various forms as well as in Sahat Samadhi, TTP, and telex program. But putting all his designation beside, he's an amazing person, as we have already come to know, and he had a great sense of humor, and he had a great vision, a very broad and transparent perspective towards life. So let's grab some amazing information from Sir, and let's look forward to the session. So we are waiting for, yes. Hello, Sir, and welcome to the session. Thank you, Amrita, for those words. A little bit of correction regarding my surname. It is Singhvi. Though I stay in region of Punjab, I am not Singh. I am slightly extension of Singh, that is Singhvi. Singhvi, yes, Doesn't sir. matter. Sorry. And no, it's okay. So please pardon me. सबके लिए that's fair, fine enough. That's a little bit of correction. आज हम every time जब मैं ये कोविड के बारे में बताता हूं तो मुझे लगता है कि वो सारा कुछ बता दिया है मैंने, लेकिन एवरी डे कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होते रहता है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा भी, और थोड़ा सा हमारे साथ पेशेंट्स भी जो ठीक हुए हैं कोविड से, जो मेरे द्वारा ट्रीटमेंट दिए गए हैं, तो वो भी ज्वाइन किए हुए हैं. उसके साथ में उनका एक्सपीरियंस भी लेंगे हम, ताकि लोगों को ये भी लगे कि भी एक्चुअली कोविड है क्या और इसको और कैसे बेहतर वे में हम डील कर सकते हैं. जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि सब लोग को, हमको लगता है कि हमने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी कर लिया है कोविड में, लेकिन अभी ऐसा सबको खुद को ऐसे लगता है कि मैंने सब जान लिया है. लेकिन आज एक नया डेवलपमेंट था. जैसे अभी सब लोग के मन में एक दहशत है कि ब्लैक फंगस क्या है, तो उसके बारे में भी आज एक डेवलपमेंट है. वो एक्चुअली आज सारा चीजें कवर करूंगा मैं, जो भी टाइम इसमें मिलेगा, सारा कुछ एक स्टेप. सो शुरू करते हैं. सबसे अहम बात है, जैसे मैं आज सुबह जब टहल रहा था तो देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ था और पत्ते, मतलब हवा बहुत चल रही थी और पत्ते कांप रहे थे, लेकिन पेड़ का जड़ है ना, वो स्ट्रांग खड़ा था.
देखो मन में एक भाव आया कि जब भी हमारे जीवन में ये तूफान आते हैं, आज के जमाने का तूफान है कोविड, आदमी पत्ते के जैसा कांपने लग जाता है कि मैं चला ऊपर भगवान के घर। ये मन में सबसे बड़ा दहशत आता है। लेकिन हमको देखना है उस जड़ की तरफ भी, जो रॉक सॉलिड खामोशी से खड़ा है। खामोश है लेकिन रॉक सॉलिड है। हमें पत्तों के जैसे कांपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोरोना से बिल्कुल आराम से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, अगर कुछ नियम जिंदगी के फॉलो करेंगे तो। लेकिन किसी ने बाद में कहा कि सोचा कि सर ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं कि पत्ते में तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है और जड़ों में है नहीं। क्या जीवन हम पत्तों के जैसा गुजारेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहना है क्या? या जड़ के जैसे रहेंगे तो जड़ता आ जाएगी, कैसे चलेगा? तो हमको एक्चुअली दोनों साइड देखना है। पत्तों के जैसा फ्लेक्सिबल होना है, और जब तूफान आते हैं तो पत्तों के जैसा कांपने की जरूरत नहीं है। और जब तूफान आते हैं तो जड़ जड़ के जैसा स्ट्रांग रहना है, और जड़ता से जीना नहीं है, फ्लेक्सिबल, और सबको एक्सेप्ट करो। और मैं आज, जैसे मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं, लेकिन मेरे लिए आयुर्वेद भी उतनी अहमियत रखती है, होम्योपैथी भी उतनी, जो भी नेचुरल चीजें हैं, सब कुछ, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। उस संदर्भ में आज हम कोरोना का एक डिसेक्शन करेंगे। सबसे पहले है कि डिवाइड करते हैं कि 3 प्रकार के हमारे पास लोग हो सकते हैं। एक है कोविड, जिसको कोविड हुआ है, जो एक्टिव पेशेंट है। दूसरा है जिसको कोविड अभी हुआ नहीं है, और तीसरा है जिसको कोविड से रिकवरी हो गई। पहले तो जानते हैं कि ये कोविड या कोरोना वायरस दिखता कैसे है। मुझे याद है पिछले 3 महीने पहले मेरी मदर चंडीगढ़ आई है साउथ से। वो आते ही वो खिड़की बंद कर देती थी शाम को, या दोपहर में बंद कर देती, दरवाजा बंद कर देती थी। बोला क्या है? बोला कोरोना बाहर आके खड़ा हो गया तो कैसे रहेगा, वो कैसे दिखेगा, वो कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा। वो एक समझती है मिथ कि ये एक बड़ा कुछ चीज है। वैसे ही कुछ लोगों के बारे में वायरस का मतलब है वो बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट या वायरस सब एक जैसे हैं। लेकिन कोरोना की शक्ल देखनी बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले एक अच्छी चीज एक शेयर कर रहा हूं मैं। आई थिंक ये सबको दिख रहा है ना? अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर आपसे छुपा नहीं है। आजकल तो इसके सब कुछ लोगो बन गए हैं, मास्क पे भी यही लगा के घूमते हैं, कैप वगैरह, डिजाइनर, सब कुछ ये बन गया है। और अगर ये देखोगे ये स्ट्रक्चर, ये वायरस है, ये बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर जो लाल लाल चीजें हैं, ऐसे लाल होता नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ये इसके सिर पे स्पाइक प्रोटीन्स हैं। लेकिन स्पाइक प्रोटीन भी इनफ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ चीज छुपी हुई है जिसे को रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं। अब ये सेल को करता क्या है? ये स्पाइक प्रोटीन, ये जो लाल लाल स्पाइक्स हैं, ये जाने से पहले ये पिंक कलर का जो देख रहे हैं, वो हमारे सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको ACE2 रिसेप्टर कहते हैं। उसको जैसे ही वो टच करता है, उसको एम्बेड करता है, एक्चुअली वो फिनोमेनन समझते हैं ना कि एग्जैक्टली फिट होता है। फिट होते ही स्पाइक प्रोटीन अंदर जाता है, वायरस अंदर जाते ही ये बिल्कुल बहुत ज्यादा शेयर नहीं करूंगा, 2-3 स्लाइड ही शेयर करूंगा। जैसे ही ये अंदर जाता है, हमारे अंदर के सिस्टम को हाईजैक कर देता है। सारा सिस्टम उसके आरएनए को, डीएनए को बाइंड करके अपने जैसे प्रकार के वायरस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और वहां से आपका, यहां से अगर आप देखेंगे अंदर जाके एग्जिट हो गया, और बहुत सारे अंदर केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो ये वायरस जब रिप्लिकेट होता है, पूरे सिस्टम में फैलना शुरू करता है। एक तो आदमी को जब
खांसता है, सांस लेता है, वो बाहर भी आता है और दूसरे सेल्स को भी अटैच करके पूरे सिस्टम को हाईजैक करके बहुत सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी में हो जाते हैं। तो अब करेंगे क्या हम लोग, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे पास ज्वाइन किए हैं जो भी, अब मैं पेशेंट नहीं कहूंगा उनको, जो भी हमारे साथ ज्वाइन किए उनको एक एक आमंत्रित करके है ना, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या फील किया, उनको किस दिन सिम्टम हुआ, क्या क्या सिम्टम हुए। सबसे पहले हम हमारे मनिंदर सिंह और कुलदीप के फैमिली को इनवाइट करते हैं। इनको मैं स्पॉटलाइट करता हूं अनम्यूट करके। हाँ, सो ये हमारे फैमिली आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले ही ठीक हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जरा मनिंदर जी समझाएं कि उनके फैमिली में कितने लोग हैं और उनको क्या क्या हुआ। ओवर टू यू। डॉक्टर, हमारी फैमिली में वी आर 4 of us, my mother, myself, my wife and my son. First of all, my wife got infected on 1st of May. तो उसे पहले गले में खराश से शुरू हुआ था, तो साथ में छींकियाँ आ रही थी. She thought that day before she had attended a wedding, तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी लिया, शायद उसके कारण हो रहा है. तो बहुत ज़्यादा इसने केयर नहीं किया, बट आई वॉज अ बिट एप्रीहेंसिव कि शायद क्योंकि कोविड इतना चल रहा है, शायद उसके कारण ऐसा हो रहा होगा. इन द मीन टाइम आई गॉट इन्फेक्टेड ऑन द 3rd day. तो मुझे भी फिर गले में इरिटेशन शुरू हो गई थी, और वहीं से फिर माई मदर गॉट इन्फेक्टेड सेम डे. 5-6 days back after that my son got infected, even though he was isolated, yet he got the infection, but इसका इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड था. तो अपना वायरस लोड मेरा तो अराउंड 17 था, मदर का 14 था, एंड वाइफ का सरप्राइजिंगली 27 था. बट शी हैड द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड अमंग ऑल ऑफ अस, एंड नेक्स्ट वाज माय मदर. मुझे तो अराउंड 3rd day बहुत ही ज़्यादा मतलब बॉडी में एक तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी, वीकनेस बहुत होने लगी थी, और हाथ पैर खिंच रहे थे. बट आई केप्ट ऑन डूइंग क्रिया एंड माय प्राणायाम एंड योगा एंड मेडिटेशन, जिसके कारण शायद मैं बाकियों से अराउंड 4th day 5th day आई वॉज रेडी टू हेल्प देम आउट. मैं खुद से वीकनेस तो थी, बट एटलीस्ट मैं किचन में जाके थोड़ा मोड़ा कुछ कर पा रहा था इन लोगों के लिए, because the entire family was infected. So we didn't have the even strength to stand up and go to the kitchen. एक दूसरे को हेल्प करना तो दूर की बात थी. तो उसके बाद वाइफ थोड़ा ज़्यादा उसका कॉम्प्लिकेशन हो गई थी. इसका फीवर जल्दी डाउन नहीं आ रहा था. अराउंड 10th day जाके आफ्टर टेकिंग सम डेक्सा डॉक्टर ने जब दिया, उसके बाद जाके थोड़ा सा फीवर कंट्रोल हुआ. इनको 7th day ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आई थी. हाँ जी. हाँ संदीप आप बोले, अभी आपका चांस है, बोले. हाँ जी, मुझे आई थी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी में, थोड़ा सा भी, जैसे हमारे घर में स्टेयर्स चढ़ रही थी ना, तो सांस फूलता था, या क्रिया करने की कोशिश करती थी तो डीप ब्रीदिंग नहीं कर पा रही थी. तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी. जो आपने स्टेरॉइड दिए थे, फिर मुझे उससे फर्क पड़ा था, तो उसके बाद मैं ब्रीदिंग कर पा रही थी प्रॉपरली 2-3 दिन स्टेरॉइड्स लेने के बाद जो आपने दिए. ठीक है. और माता जी को लूज मोशंस भी हुए थे. हाँ जी. एंड शी इज 68 आई थिंक, एंड शी इज डायबिटिक. इनको डायबिटीज भी है. इनको प्रिडोमिनेंटली था, फीवर तो था, ये लूज मोशंस का भी दिक्कत था. सो ये एक फैमिली है. और दूसरी है हमारे यहाँ से पूना से ज्वाइन किए हैं राजेश. आप अनम्यूट करें. गुड इवनिंग सर. हाँ बोलें. अच्छा, अभी सबसे पहले तो बताऊं कि डॉक्टर साहब से अभी हमको कोरोना के 25 दिन हो गए. उससे पहले से डॉक्टर साहब टॉक करते हैं कोरोना के ऊपर.
तो जब एक टॉक सुना था तो उन्होंने सबसे पहले एक चीज बोली थी कि कोरोना से डरना नहीं है बिल्कुल, और दूसरा बोला था कि हमिंग बी चैलेंज उन्होंने एक लिया हुआ था जो हॉस्पिटल में उन्होंने लिया था 10 दिन का। तो जैसे ही हमको कोरोना हुआ तो हम लोगों ने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, तो उन्होंने वही चीज बोली कि राजेश डरना नहीं है, और एवरी 2-2 घंटे पे आपको, मतलब जो हमिंग भी मतलब भ्रमरी बोलते हैं इसमें प्राणायाम में, तो हर 2 घंटे पे 6 टाइम्स करके दिन में 8 टाइम्स हमिंग भी करो। और दूसरा कि डॉक्टर साहब ने एक चीज बोली थी कि अगर बुखार आता है बिल्कुल पैनिक मत होके खाली एक डोलो 650 ले लो। और एक चीज उन्होंने सजेस्ट किया था कि श्री श्री रविशंकर की एक इम्यूनिटी किट आती है, तो उन्होंने लेने का किया, आयुर्वेदिक का इम्यूनिटी किट वो लिया हमने। और फॉर्चुनेटली मैंने डॉक्टर साहब को जब फोन किया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि एक मेरा सहज समाधि का एक 3 दिन का कोर्स है राजेश, बोले तू ये कर ले तो तेरे को 3 दिन के अंदर अंदर ही तेरा मोस्टली ठीक हो जाएगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने मेरे को किया और गाइड किया और उस तरह से मैं किया, और एग्जैक्ट 3 दिन में मेरे को 2 दिन तक बुखार आया, हर 5-6 घंटे बुखार आता था, मैं लेता था, पर 2 दिन के बाद मेरा बुखार भी चला गया। और डॉक्टर साहब ने बोला था कि 3 दिन में जैसे तेरा सहज समाधि का कोर्स खत्म होगा मोस्टली उससे पहले पहले तेरा बुखार भी चला जाएगा, और वैसे ही हुआ। और उसके बाद जैसे ही मेरे को ठीक हुआ, मेरी पूरी फैमिली में मेरी डॉटर, मेरे सन, मेरी वाइफ, सबको हुआ। पर जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था वो चीज हमने फॉलो की, और उनको भी फॉर्चुनेटली 3 दिन में कंप्लीट ठीक हो गया। और 3 दिन में हम सब लोग घर में फिर सिर्फ मास्क लगा के घूमते थे, ये एक प्रिकॉशन लिया था, और 14 दिन क्वारंटाइन रहे थे। पर जो पैनिक नहीं हुए, प्राणायाम वगैरह किया सुबह शाम, सहज समाधि का जो कोर्स है वो किया, और इम्यूनिटी किट, ये चीज हमको इतना हेल्प किया कि मतलब न को कुछ पता चला कि हमको कुछ हुआ है, न हमारे घर में कोई पैनिक हुए, और हमको कंप्लीटली ठीक हो गया। थैंक यू। और पौंडीचेरी से कोई ज्वाइन किया है? उषा और धर्मेंद्र देखो, अगर उषा और धर्मेंद्र ज्वाइन किए हैं तो आप अनम्यूट करें, इतने में मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। नमस्कार। हाँ अनम्यूट करें यार। हाँ अनम्यूटेड है। हाँ यू हैव टू बी, ठीक है। ब्रीफ बताइए कि क्या हुआ था, और सीटी स्कैन किया था, और स्टीरॉयड, इकोस्प्रिन, एस्प्रिन, वो उसके बारे में भी बताइए। फीवर कब हुआ, क्या डेवलपमेंट? ओके, करीबन 1 महीने 1.5 महीने पहले सारी फैमिली को हुआ था। वी आर 5 ऑफ अस इन आवर फैमिली, और मेरे से स्टार्ट हुआ था, और मेरे से सारों को ट्रांसमिट हुआ था। एंड वी हैव स्टार्टेड विद डोलो 650 जैसे आपके सजेशन पे, एंड देन माय वाइफ गॉट इन्फेक्टेड। उनका इन्फेक्शन ज्यादा हुआ था, सो उनका सीटी स्कैन करवाया था आफ्टर 1 वीक, एंड सीटी स्कैन में शी वाज अराउंड 12 ऑफ 25 उनका परसेंटेज था, एंड शी वाज टेकिंग स्टेरॉइड्स आपके सजेशन पे। एंड देन we have gone through your video, we have started doing Brahmari immediately after getting infected. Brahmari and steam जैसे आपने बताया, हम पहले है ना steam सारा ही we were adding additives, medicine add करके, then we were taking the steam. We have stopped that after your instruction. We have taken the steam for 8 minutes continuously and without any additive, in अपने देसी स्टाइल में steam लिया, and doing Brahmari regularly has helped us a lot. और 7th डे जब हमने सीटी स्कैन किया था, फिर क्या शुरू किया था? ये अपना स्टेरॉइड स्टार्ट किया था। 7th डे शुरू किया था, और साथ में इकोस्प्रिन भी शुरू किया था। इकोस्प्रिन 1 महीने तक इकोस्प्रिन लिया। ठीक है। और एक और, हाँ थैंक यू। अनिल करके कोई आए हैं तो देखें। इफ अनिल हैज कम, ही कैन अनम्यूट हिमसेल्फ। दैट विल बी द लास्ट थिंग, देन I think we will describe all the things what happened to all these people, and of course I think Anil दिख नहीं रहे हैं इसमें। So देखिए, सबसे पहले याद रखें कोविड ट्रांसमिट कैसे होता है। इट्स ए एयरबॉर्न डिजीज, हवा से जाएगा, नाक के रास्ता जाएगा।
इसका मतलब है आपका नाक का मास्क प्रॉपरली पहनेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। डबल मास्क आजकल प्रेफर कर रहे हैं। और इसके सिम्टम्स 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहां से जैसे नाक से ऊपर 2 चीजें, स्मेल और टेस्ट जाता है। जिनका स्मेल और टेस्ट चला जाता है, देखा गया है कि वो जल्दी ठीक होते हैं, उनको लंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। और सेकेंड थिंग, छाती के नीचे वाला सिम्टम्स जो लूज मोशंस हैं, पेट में गड़बड़ है, डाइजेशन नहीं होता है, सेकेंड है, वो भी जल्दी ठीक होते हैं। अब प्रॉब्लम वाला एरिया क्या है? प्रॉब्लम वाला एरिया है जिनको नाक और छाती के बीच में। देखो सिम्टम्स, गले में दर्द, गले में खराश, छींके आना प्लस फीवर। और फीवर भी कैसा है? ऊपर नीचे होता है। लेकिन याद रखें, इस दौरान आपको पैरासिटामोल के अलावा, स्टीम के अलावा, ज्यादा पानी पीने के अलावा, ये जो नेचुरल चीजें, इसके अलावा एक्चुअली कुछ नहीं करना है। क्यों, मैं बताता हूं। जब वायरल इन्फेक्शन होता है, जब रिप्लिकेट होता है, तो बॉडी भी उसका रिएक्शन, उसको मारने के लिए रेडी, सक्षम रहता है। जब वो बॉडी का और वायरस का इंटरेक्शन होता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बट जैसे ही यूजुअली 4 दिन तक ये रहता है, 80 से 85% लोगों में 4 दिन में फीवर टूट जाता है और ये खत्म हो जाता है। लेकिन लोग यहाँ क्या-क्या गलती करते हैं? नंबर 1, स्टेरॉइड खा लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं। हमारे इंडिया में सब स्टेट में ना अलग-अलग प्रोटोकॉल रखा हुआ है। कहीं आइवरमेक्टिन देते हैं, कभी डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, कभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं, कभी एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना है सबसे फर्स्ट। कोई भी स्टेरॉइड नहीं खाना है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेरॉइड नहीं खाना है पहला 6 to 7 डेज। ये गांठ बांध कर रख लो। अगर स्टेरॉइड खा लिया तो रिप्लिकेशन बढ़ जाएगा और इसमें कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये है। अब इन जो 2 फैमिली फर्स्ट 2 डिस्कस किया है, ये जो अपने संदीप हैं, मनिंदर, इनके फैमिली में आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ था और इनका पॉजिटिव था। लेकिन राजेश का आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं हुआ है। उस दिन मैंने एक्चुअली बोला कि अगर आपको फीवर है, ये सारे सिम्टम्स हैं, मान लो कि आप कोविड है। उन्होंने मान लिया और सारा कुछ वही सिंपल चीजें फॉलो किया एंड ही वाज ऑल राइट। बट कोई व्यक्ति ये भी पूछ सकता है कि इनको कोविड हुआ करके कैसे पता चला? हमने 10-12 दिन के बाद इनके एंटीबॉडी टेस्ट कराए जो कि हाई थे और पॉजिटिव थे। इसका मतलब उनको रिसेंटली इन्फेक्शन हो गया। और ये भी बात बता दूं, इन दोनों फैमिली में राजेश को एक कोविशील्ड टीकाकरण हो चुका था। 1 डोज ऑफ वैक्सीन लगा था। इसका क्या मतलब है? अगर वैक्सीन लगना मतलब दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके एंटीबॉडी ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, उसको जल्दी से किल करेंगे। ठीक है? हम वो वैक्सीन के सेशन में जब आएंगे उसको भी मैं बताऊंगा। और जैसे इनका जैसे 5 to 6 डेज में जिनका फीवर खत्म हो गया, ठीक हो गया। लेकिन इस दौरान फीवर मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन सैचुरेशन और ब्रीदिंग का ध्यान रखें। जैसे संदीप कौर को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आई, थोड़ा सा एक्सर्शन में, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग में थोड़ा सा दिक्कत आया, फीवर एस्केलेट किया। जो पौंडीचेरी वाली फैमिली है, उनको फीवर एस्केलेट किया, सीटी स्कैन, उन्होंने सीटी स्कैन कराया, उसमें 12 आउट ऑफ 25 स्कोर था। इसका मतलब है लंग डैमेज शुरू हो गया था। अब ये लंग डैमेज वायरस नहीं कर रहा है, वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बन रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, उसका रिएक्शन के वजह से लंग्स में उसका ऑटो इम्यून फिनोमेनन कहते हैं, खुद के बॉडी को खुद ही कण एक्सपायर कर। लेकिन यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस इम्यूनिटी को सप्रेस करना है। यहाँ रोल आता है स्टेरॉइड का। देखो बहुत अहम है, पहला 6 दिन हमने स्टेरॉइड ना देना है, ना देखना है, ना जमा करके रखना है। सब लोग जमा करके रखते हैं और इंस्टिंक्ट है, नहीं नहीं मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा, खा ले। नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, फीवर परसिस्ट कर रहा है, अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, प्लस अगर किसी को ये लग रहा है कि लंग्स में कुछ इश्यू आ रहा है सीटी स्कैन में, स्टेरॉइड स्टार्ट करें। नंबर 2, उसके अंदर क्लॉट भी बन रहा है।
क्लॉट बनने में हम दो चीजें कर सकते हैं, एक या तो सीधा एंटीकोएगुलेंट जो क्लॉट बनना ही नहीं देते, एक और जो प्लेटलेट को क्लॉट बनाने से रोकती है। हमने यहाँ जो फैमिली है, दो फैमिली को हमने इकोस्प्रिन दिया था, अनिल को एक जो भी पेशेंट थे उनको हमने एंटीकोएगुलेंट दिया था, तो उसके क्लॉट भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। और हम 3 से 3 हफ्ता, ऐसा किसी को 2 हफ्ता 4 हफ्ता जो जल्दी ठीक हो गए बंद भी कर देते हैं। सो सेकेंड वीक में ट्रीटमेंट है, जो ठीक नहीं होते हैं स्टेरॉइड और जो ब्लड थिनर होते हैं, ये दो। साथ में जो सब लोगों ने एक कॉमन चीज बताई है, भ्रामरी प्राणायाम। देखो सन 2003 में जो एक हमिंग बी टेस्ट किया था, उसमें देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बढ़ जाता है, उसके वजह से वो एंटीवायरल प्रॉपर्टी है उसका। हम जो हमिंग बी करते हैं, जो सब लोगों ने किया है, उनकी रिकवरी फास्टर हुई है। ये एक ही है जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, बाकी सब प्राणायाम भी होता है। और तीसरी बात है, किसी ने इम्यूनिटी किट के बारे में बताया, उसमें कुछ 4-5 चीजें होती हैं। तुलसी अर्का होता है और आपका काबासुर होता है, टर्मरिक होता है, अमृत होता है। उसमें देखा वो एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। देखो साइड इफेक्ट कोई नहीं है, आपने ले लिया वो भी रिकवरी हो गई। अब जैसे देखा कि जिसको स्टेरॉइड दिया वो सब ठीक हो, लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम होता है, जहां ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होते ही आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑक्सीजन की। होम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ठीक है अगर अवेलेबल है तो, अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है तो क्या करें? तो जो इम्यूनिटी किट की बात पूछ रहे हैं, वो श्री श्री आयुर्वेद की इम्यूनिटी किट है, आप चेक कर लें, उसमें मिल जाएगा आपको। सेकेंड, जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो हॉस्पिटल जाना ही है, वहां फिर नेक्स्ट लेवल का है। थर्ड वीक में डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। एक तो पूरा व्यक्ति फिर से ठीक होता है, जो 80% तो ठीक हो गए, बाकी 15% भी ठीक हो जाते हैं, बट 5-7% हॉस्पिटल में लैंड कर जाते हैं, जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर वो जरूरत पड़ेगी। 2-3 हफ्ते पहले पैटर्न था कि रेमडेसिविर दो, टोसिलुसिमैब दो, वो सब लोग स्टॉक कर रहे थे कि एंटीवायरस के। अब वो खत्म हो गया बात। अब रेमडेसिविर का कोई काम नहीं है, देना ही नहीं चाहिए, उसके जरूरत है नहीं। और टोसिलुसिमैब के ऐसा इतना ज्यादा आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसमें ज्यादा कुछ इफेक्ट मिला नहीं है। कुछ लोग फिर भी यूज कर रहे हैं, जहां रिक्वायरमेंट है बहुत फ्यू केसेस में फिर हो गया। तो ये फिर स्टीरॉइड उसमें कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि स्टीरॉइड देना कितने दिन है। अब कुछ लोग, मैंने 3 दिन पहले किसी का देखा था कि वो 3 हफ्ते हो गए स्टीरॉइड खा रही है लड़की, गला जैम है, आंख बंद है, खांसी हो रही है, बोल नहीं पा रही है। उसके किसी ने 12-13 मेडिसिन लिखी थी, मैंने उसमें 11 तो बंद कर दी थी, और उसके बाद में वो बेटर फील करने लग गई है थोड़ा बहुत। और साइमल्टेनियसली जो इनिशियल स्टेज में बोलते हैं विटामिन ले लो, विटामिन सी ले लो, जिंक ले लो, फलाना ले लो, ये ज्यादा विटामिन सी मल्टीविटामिन ले लो नहीं ले लो ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट है। अभी किसी को भी जिंक नहीं देना है, जिंक नहीं खाना है, एक्स्ट्रा जिंक नहीं खाना है। अब क्यों मैं एक्स्ट्रा जिंक की बात बता रहा हूं, वो जब मैं म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में बताऊंगा, उस टाइम पे इसके बारे में जिक्र करूंगा। तो ये बात हो गई आपकी जिंक। बट जो लोग रिकवर कर गए उनको क्या करना है, क्यों मैं बताता हूं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रिसेंटली, वो 48-49 ईयर्स के हैं, वो कोविड हो गया उनको, उससे पहले ही वाज जॉगिंग एंड ऑल 10 किलोमीटर्स एवरी डे। जब कोविड से ठीक हो गए, दो हफ्ते रहे कोविड क्वारंटाइन में, उसके अगले दिन उन्होंने बाहर गए और बोले मैं अभी जॉग करता हूं। वो कोलैप्स करके वो एक्सपायर कर गए, उनको स्ट्रोक पैरालिसिस हो गया, क्लॉट बन गया और डीकंप्रेस होके वो एक्सपायर कर गए। इसका मतलब क्या है, 2 हफ्ता सिर्फ कोविड ठीक हुआ है, आपका बॉडी अभी अडेप्ट नहीं हुआ है सिस्टम में। वो सिस्टम को अडेप्ट करने के लिए वो ग्रेजुअल फिनोमिनन चाहिए। जिसको सीवियर कोविड है, कुछ लोग एस्पिरिन ले रहे हैं, कुछ लोग आपका एंटीप्लेटलेट एंटीकोएगुलेंट ले रहे हैं, उससे ठीक हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद में आपको कोविड से पहले वाला और कोविड के 2 वीक्स के बाद में, ये 2 जीवन का लाइफस्टाइल चेंज करना है।
जो पहले ही हमारा यौगिक सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसा टाइमली खाना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग। बोलते हैं शाम को 7 बजे से पहले खाने से अगले दिन सुबह 8-9 बजे ब्रेकफास्ट करने से ये 12 से 14 घंटे अगर फास्ट रखते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे इम्यूनिटी बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चीनी वाली चीजें, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट शुगर, व्हाइट जो मैदा है, इससे इम्यूनिटी कम होती है। ट्राई टू अवॉइड एज फार एज पॉसिबल। थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन एक बार अगर 2 चम्मच चीनी खा लिया तो अगले 2.5 घंटा इम्यूनिटी 50% पे आती है। सो ये थोड़ी चीजें खाने के बारे में बता दी मैंने। सेकंड, आपके बॉडी को क्या करना है। देखो बॉडी, अब जब आपको कोविड हो गया, लंग्स पे इफेक्ट करता है, तो आपका लेफ्ट लंग्स का एक्सपेंशन ठीक चाहिए, गैस का एक्सचेंज ठीक चाहिए लंग में। उसके लिए जरूर योगा और प्राणायाम करें। अब प्राणायाम में कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा प्राणायाम। मैं चाहता हूं द बेस्ट प्राणायाम इज नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, थोड़ा सा भ्रस्त्रिका कर लिया, कपालभाति कर लिया शुरू में, लेकिन रिकवरी के टाइम पे भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग कोविड टाइम पे भी कर सकते हैं। इससे रिकवरी फास्ट होगी। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा, गैस एक्सचेंज हो गया प्रॉपरली, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करना है, रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। अब बात आती है जो लोग 50 साल के ऊपर है, जो डायबिटीज है। अब डायबिटीज में आप स्टेरॉइड दोगे तो शुगर शूट अप करेगी। अब जैसे ये फैमिली जो पहले डिस्कस किए थे, उनको डायबिटीज भी है, उनको 7th-8th डे फीवर तो ठीक हो गया, लेकिन लूज मोशंस का प्रिडोमिनेंट प्रॉब्लम है। अब किसी व्यक्ति के पास जाओगे तो स्टेरॉइड दे देंगे, उनका डायबिटीज शूट अप करेगा और रिकवरी में हेल्प नहीं करेगा। और जो ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम, जिसको म्यूकरमाइकोसिस, एक्चुअली फंगस ब्लैक नहीं होता है, जो टिश्यू को काला कर देता है, उसके टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो काला रंग का होता है, इसलिए ब्लैक फंगस कहते हैं उसको। वो लोग जो कोविड से रिकवर हो गए, पर्टिकुलरली डायबिटीज पेशेंट जिसमें स्टेरॉइड यूज किया है हाई डोज में, या जिसमें आज का और कल का रिपोर्ट में है कि जिंक जो है, जो बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन फंगस के ग्रोथ के लिए भी जिंक जरूरी है। बॉडी में अगर जिंक ज्यादा हो गया तो फंगस जल्दी से ग्रो करेगा, ऐसा वो फैक्टर क्लैरिटी आने लग गई है अभी, तो वो भी हमने ध्यान रखना है। सो ये चीज हो गई। और हमारा बॉडी का एक्सरसाइज हो गया, माइंड का प्राणायाम हो गया, फिर ध्यान है। देखो हमको भागना क्यों पड़े डॉक्टर के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे? सिर्फ ये एनर्जी का प्ले है, सिर्फ एनर्जी आपको हाई रखना है। जो व्यक्ति के पास एनर्जी हाई है उस पे भी वायरस आएगा, लेकिन क्या है, वो 2-4 दिन में चला जाएगा। ये भी एक फ्लू टाइप का ही वायरस है, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा है। कॉम्प्लिकेशंस अगर 2 लाख लोगों में 10,000 लोगों को कॉम्प्लिकेशन आती है, बेड नहीं मिलता, इसलिए उसका हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इसका मानना ये नहीं है कि हमको डरना नहीं चाहिए इसमें। फियर से क्या होगा, जो मैंने लास्ट टाइम बात किया था, एक ट्रायंगल होता है हमारे बॉडी में, ऐसा दिखने वाला ट्रायंगल नहीं होता है। 1 इज आपका ब्रेन, सेकंड इज आपका माइंड, और थर्ड इज आपका इम्यूनिटी सिस्टम। और जो माइंड और ब्रेन एक ही है, थर्ड इज हार्मोनल सिस्टम। अगर आपका इम्यूनिटी, अगर फियर हो गया तो इम्यूनिटी कम होगा, अगर आपका इम्यूनिटी कम है, एनर्जी कम है, तो आपका दूसरा साइकिल भी, ये ट्रायंगल है ना, इसको कहते हैं हेल्थ स्टेबलाइजिंग ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल फिट रखना है तो आपको टोटल यौगिक सिस्टम, कोरोना कोई इस स्थिति में मैं कोई बुरी चीज नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इसने बहुत सारा चीजें, बहुत सारे लोगों का आंखें खोल रखी है कि हम क्या कर रहे थे इतना समय तक, हम कहाँ व्यर्थ हमारी टाइम व्यर्थ कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ खाना पीना, रात को कोई टाइमिंग नहीं होता है, बॉडी ऐसे नहीं चलता है। देखो एनिमल्स तक, बर्ड्स तक शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद कुछ भी खाते नहीं है, फास्टिंग रखते हैं सब, उनको भी पता है सवेरे जल्दी जागना है, उनको भी पता है। हमको सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करना है, उससे सब कुछ हो जाता है। सो ये है, रिकवरी के टाइम पे भी आप सिस्टम बनाएं। अब प्रॉब्लम वहां आएगा कि हम टेक्निक क्या अप्लाई करें। कॉमन सेंस है, सब लोग एजुकेटेड हैं,
आप देखिए आसपास कोई योगा का शिविर चल रहा है, वो रेगुलर नहीं, आप एक पैटर्न फॉलो कर लो, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया। अगर किसी को इंटरेस्ट रहता है तो यू कैन सर्च द आर्ट ऑफ लिविंग वेबसाइट, वहां एक सुदर्शन क्रिया वाला प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ और सहज समाधि, वो कर सकते हैं। सो ये रहा आपका बात, आपने हेल्थ कैसा इंप्रूव करना है, ये आपका इंप्रूव हो गया। अब कुछ सेलेक्ट लोग हैं जहां पे स्टीरॉयड का दिक्कत आता है, उसमें डायबिटीज है, जिसको कैंसर पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, एल्डरली हैं, वहां पे फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं स्टीरॉयड देने से, उसमें हम ध्यान रखें कि वो देना नहीं है। ये सिंपल चीजें हैं कोविड के बारे में। और अब बारी आती है प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन का क्या करना। बहुत लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन लगाना है या नहीं लगाना है। सबसे पहला थिंग, somebody has asked ये अभी क्वेश्चन आया है ट्रायंगल का, बता दिया। ये एक ट्रायंगल में ब्रेन और माइंड है, सेकंड ट्रायंगल हार्मोन सिस्टम है, थर्ड इज इम्यूनिटी है। अगर हमारा ब्रेन और माइंड स्ट्रेस में रहता है तो हमारा हार्मोन, जो टेंशन वाले हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। अगर ये इंक्रीज हो गया, कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। कॉर्टिसोल इज ए स्टेरॉइड व्हिच डिक्रीजेस द इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये ट्रायंगल हमको स्टेबलाइज करने के लिए यौगिक सिस्टम फॉलो करना है। दैट इज अ सिंपल अबाउट दिस थिंग। अब बात आ रही है वैक्सीन की। पहले तो पूछे लगाएं कि नहीं लगाएं, और लगाएं तो कौन सा लगाएं, कोवैक्सीन लगाएं, कोविशील्ड लगाएं, सब। क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में विद इन 1 ईयर ये वैक्सीन रोल आउट हो गया। तो अभी भी लर्निंग फेज चल रहा है सबका। पहले बोला वैक्सीन आज लगाना है, 4 हफ्ते बाद लगाना है, फिर उसका 6 से 8 हफ्ते हो गया, अभी 12 हफ्ता हो गया। कोई वैक्सीन 2 बार लगाना है, कोई नेजल स्प्रे ही है जॉनसन एंड जॉनसन का, वो आए तो लगाएंगे। और आज किसी ने ट्वीट किया है, बोला है वो ट्रांसप्लांट सर्जन है, उन्होंने 3rd डोज लगाया है, 4 वीक्स एंड 4 वीक्स। वो 3rd डोज के बारे में सडनली देखा कि उनका स्पाइक ऑफ एंटीबॉडी बहुत बढ़ गया है। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है, जो एक बार प्रोटोकॉल फॉलो किया, दो बार लगा लिया, ठीक है, लग गया। आपको ध्यान रखना है, जो ऑलरेडी कोविड से ग्रसित हैं, जो ऑलरेडी जिसको कोविड हो गया है, उनको मेरे हिसाब से प्रोटोकॉल बोलता है 3 महीने के बाद वैक्सीन लगाना चाहिए। 6 महीना, 3 to 6 months, 6 महीने तक वैक्सीन नहीं लगाना है उन्होंने। और दूसरा ये भी है, बॉडी में जब वायरस जाता है, वायरस का जो भी अंदर अंश है, हमारे बॉडी में एक मेमोरी सिस्टम है, वो जीवन भर जिस चीज से उसने लड़ के उसको हराया है, उसको याद रखता है वो। अगर वो दोबारा एंटर हो गया ना, से फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ कोविड के जो भी व्यक्ति जो ग्रसित बैठे हैं, अगर उनको अगले हफ्ते, 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद अगर वायरस अंदर गया, वो देखना पहले 7 दिन हो गया ना, दूसरे बार हो सकता है 4-3 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉडी रेडी है, ऑलरेडी रेडी है। सो ये सडनली ये देखना है। तो वैक्सीन के बारे में बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करें, यौगिक सिस्टम अपनाएं, जो जब अवेलेबल है आप लगा लीजिए। बट जिसको कोविड हो चुका है वो बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है अभी वैक्सीन। 3 to 6 months बिल्कुल उसको छोड़े नहीं। आगे हो सकता है लगाएं नहीं लगाएं, वो अलग बात है, लेकिन मास्क वगैरह प्रिवेंशन रखें। ये हो गया वैक्सीन के बारे में। अब आजकल सब लोग इवन घर घर में जिसको मेडिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बोल रहे हैं कि अभी ब्लैक फंगस आ गया है। सिंपल चीज में ब्लैक फंगस क्या है बता देता हूं। हमारे जैसे समझो कि आंगन में कहीं पे कोने में, घर के बाहर नल के नीचे कोई बहुत दिन से मॉइस्चर है, पानी पड़ा है, या उसके ऊपर कुछ पत्थर पड़ा है, उसके नीचे मॉइस्चर है, जब आप हटाते हैं वो ग्रीन कलर का काई होता है, वो फंगस है, वो बाहर का फंगस है। इसका क्या मतलब है, इससे अंडरस्टैंड 2 चीज होती है। एक तो फंगस वहां ग्रो होता है जहां मॉइस्चर है, नंबर 2 जहां वहीं ग्रो होगा जहां सेकंड है इम्यूनिटी कम है।
जब हम स्टेरॉइड लेते हैं हमारा इम्यूनिटी कम होता है, इसलिए स्टेरॉइड का लेफ्ट राइट सेंटर यूज नहीं करना है। इवन डॉक्टर भी, आप आपके सामने कोई डॉक्टर भी लिखते तो उनको बोले नहीं, 6 से 7 दिन के बाद अगर फीवर होगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो नहीं। आप बिल्कुल मना करें, किसी को लेना नहीं है स्टेरॉइड ऐसे ही। सेकंड, जो डायबिटीज है, कैंसर पेशेंट है, जिनको कोई ऐसी मेडिसिन चल रही है जिसको इम्यूनिटी कम करते हैं, उसमें ज्यादा हो जाता है। तीसरा, कुछ लोग अभी घूम रहा है कि मास्क अगर ठीक से पहन के बहुत दिन से सेम मास्क यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत ह्यूमिडिटी है, तो फंगस के थोड़े पार्टिकल्स बन के वो ब्रीदिंग में जा रहे हैं। वो अभी पूरा क्लैरिटी नहीं आया उसमें। अब ब्लैक फंगस का सिम्टम्स क्या है मैं बता देता हूं। इंग्लिश में इसको कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस। राइनो मतलब नाक, नाक से शुरू होगा, नाक में पहले नाक ब्लॉक हो जाएगा, नाक से थोड़ा सा लाल लाल चीजें हैं, ब्लीडिंग हो जाएगी, और इतना बैड रहेगा, स्मेल बहुत खराब गंदा स्मेल आएगा उसमें। उसके बाद में एक्सटेंड होगा, साइनसेस में जाएगा, सिंगल साइनस में चला गया, डबल साइनस में गया, दूसरी बार गया, वो स्टेज 2 में पहुंच गया। सीवियरिटी बढ़ते गई, ब्लॉक हो गया, उस दौरान उसका एपेटाइट कम हो जाएगा, थोड़ा फीवर डेवलप हो गया, फिर यहाँ पेन शुरू हो जाएगा, फिर वो जाएगा आंख में, आंख में जाते ही पलक गिर जाएगी, आंखें आगे हो जाएगी, फिर दिखना कम हो जाएगा, फिर वो ब्रेन में चला जाएगा। जो ब्लड, जहां पे भी ब्लड की धमनियां हैं उसके अंदर से उसको वो इन्वेड करके घुसते रहेगा। लेकिन इस दौरान हमारी बॉडी चुप नहीं बैठेगी, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको फ्लश आउट करते रहेगी। लेकिन अगर हो गया, इसको ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं, जो ब्लैक को टिश्यू को डैमेज करता है, उसको कालापन लाता है, उसको आप इसलिए ब्लैक फंगस कहते हैं उसको। उसका फिर इंजेक्शंस होते हैं, एडमिशन होता है, किसी में सर्जरी होती है, और उसका चांसेस है कि सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है उसमें। सो वो है ब्लैक फंगस। और दूसरा ये अभी रिसेंटली आया 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, 2DG जिसको कहते हैं। सो वो जो सैशेस हैं, DRDO ने जनरेट किया है, जो पाउडर लेना होता है, अभी कुछ सेंटर में अवेलेबल है, एम्स में है, कुछ सेलेक्ट ग्रुप में है। सिर्फ वो करता क्या है, वो चीटिंग करता है, वो ग्लूकोज जैसा ही रहता है लेकिन रिप्लेस है, सेल के अंदर जाएगा, वायरस को ग्लूकोज चाहिए, लेकिन जब वो वायरस उसको ग्रहण करेगा, वो एक्चुअली वो एनर्जी वाला ग्लूकोज नहीं है, तो वायरस ऐसे कहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अर्ली डेज टू टेल, बट उसके पीछे भी अभी भागदौड़ नहीं करे, जब आएगा तब उसका भी डिटेल रिसर्च पता चल जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग ये भी ध्यान रखनी है कि जो 3 चीजें जब भी आपको है कि RT-PCR क्या जब ठीक होते हैं मस्ट है कि करवाना चाहिए। RT-PCR जिसको जॉब में जाना है, ऑफिस जाना है, वापस वो कराएं। जो ठीक हो गया दोबारा RT-PCR कराने की जरूरत नहीं है। 10 दिन में जो ठीक हो गया कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑफिस जाएंगे तो सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ कैरियर हो गए, लेकिन घर पे रहते हैं और घर पे ही काम करते हैं तो RT-PCR की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, क्या CT स्कैन की जरूरत है? यहाँ हमने 3 लोग को देखा, एक पौंडीचेरी वाले हैं जिन्होंने CT स्कैन करवाया था, और एक है जो चंडीगढ़ से हैं, उन्होंने CT स्कैन नहीं कराया लेकिन स्टीरॉइड दिया, क्योंकि उनमें पता था कि फीवर एस्केलेट हो गया, थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। खाली सतर्कता है ना, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन अवॉइड कर सकती है। देखो, बैटरी ऑफ टेस्ट मैंने आज बताया नहीं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है उसकी भी। और तीसरा, जो पूना में है उन्होंने तो RT-PCR भी नहीं कराया, क्योंकि वो इतना सजग थे और वो केयरफुल थे। वो मान के चल गए कि मुझे कोरोना है, मुझे दूसरों को स्प्रेड नहीं करना है। उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को। उस दौरान उन्होंने योगा किया, मेडिटेशन किया, इम्यूनिटी किट खाया, सहज समाधि किया, और वो ठीक हो गए। तो इसका मतलब है, अगर कोई डॉक्टर बहुत शार्प और क्लियर रहता है और पेशेंट भी समझता है कि ये करना है, वो अननेसेसरी ट्रीटमेंट में नहीं जाएगा, अननेसेसरी इसकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं होगी, और अननेसेसरी बहुत सारे चीजें कॉम्प्लिकेशन बच सकती है। तो आई थिंक ये बहुत सारांश में ये कोरोना के बारे में है। और
ऑफ कोर्स अभी मेरे पास एक पेशेंट एडमिटेड हैं जिनको ब्रेन में कोरोना वायरस का सिम्टम्स चला गया, उनको एन्सेफलाइटिस हो गया, उनको दौरे पड़ रहे हैं, एमआरआई में उनकी फाइंडिंग्स आई है, अब उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बेटर है, अलग बात है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस उसके बाद में भी हो सकती है, यू हैव टू बी केयरफुल। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारा जो डीएनए है ना, ऑलरेडी हमारे डीएनए इतना सारा वायरसेस से अफेक्टेड है जन्मों जन्मों तक, वो इतना चेंज हो गया, 8% ऑफ आवर डीएनए इज वायरस। 8% हमारा डीएनए वायरस है। ये वायरस 8% अभी नहीं आया। देखो आपके मदर को हुआ, आपके मदर का डीएनए आपको आया, आपके मदर का जो मदर फादर का पेरेंट्स का डीएनए उनके उसमें जो भी डीएनए, क्योंकि डीएनए ही जो चल रहा है आगे। और आज के तारीख में 8% है, वो कोविड वायरस अंदर जाके वो 0.100% और वो इंक्रीज कर देगा, फिर उस पर कोई चिंता की बात नहीं होती है। बट सतर्क रहें, कोई चीज को व्हाट्सएप में कुछ किसी ने लिख दिया तो उसके पीछे होके डर गए, वो नहीं करना है। तो और लेकिन फाइनली सब क्वेश्चन आंसर रहने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगा आपको, आप अपने लाइफस्टाइल को इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें कि आप जीवन कैसे गुजार रहे हो, क्या ये ठीक है अपने लिए। ये एक देखो, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। सो अभी आई थिंक मैंने जो बोलना था तो बोल दिया है। इसमें क्वेश्चंस हैं, मैं तुरंत आई थिंक 2 मिनट में क्वेश्चंस भी खत्म कर देता हूं ताकि दूसरे लोग क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। सो इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि वैक्सीनेशन के बाद में हाई फीवर हो गया, व्हाट शैल आई डू। देखो आपका एज मुझे पता नहीं है, बट हमने बचपन में स्कूल में टेटनस का टीका, डीपीटी का टीका, वो सब लगाया है। उस दिन क्या होता था, वो प्लान करते थे स्कूल में कि 1-2 बजे इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में बच्चों को घर भेजते थे। कुछ लोगों को ज्यादा लगता है तो अगले दिन छुट्टी देते थे। फीवर तभी भी आता था, तभी भी हाथ उठने में दिक्कत था, कभी भी दर्द था। यहाँ इतना हाइप हो गया, अरे कोविशील्ड से ये हो जाएगा। पहले भी यही होता था। आप याद करो, अपने माता पिता को पूछो जो यंगस्टर हैं, होता है। सो अगर हो गया, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। पैरासिटामोल लीजिए, पानी पीजिए, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये किसी ने लिखा है कि इज देयर एनी चांस ऑफ हैविंग म्यूकरमाइकोसिस इन सीवियरली डायबिटिक पर्सन हु इज नॉट हैड डायबिटीज। देखो, डायबिटीज इफ इट इज अनकंट्रोल्ड, इट इज ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट। अगर कंट्रोल रखेंगे डायबिटीज तो उनको म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगा मतलब चांसेस कम होंगे, लेकिन अगर कोविड नहीं हुआ तो नहीं होगा ना। आप ध्यान रखें, जो व्यक्ति, जैसे बहुत लोगों को मैं क्लोजली जानता हूं, उनको डायबिटीज है लेकिन उनको म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपना इलाज, शुगर उनका कभी भी 300-400 रहता है, उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको म्यूकरमाइकोसिस, दूसरे वायरस इन्फेक्शन सब कुछ हो चुके और हॉस्पिटल में भी डेवलप हो चुके। ये और एक कोई पूछा है, आफ्टर कोविड इज इट मस्ट टू टेक वैक्सीन इन 3 to 6 months? थी, इट्स $1 billion क्वेश्चन। खाली हम अपने एक्सपीरियंस से ले सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको 50 साल की उम्र के ऊपर हैं, तो उनको इन्फ्लुएंजा का वायरस भी बोलते हैं कि लेना चाहिए एज ए प्रिवेंटिव फॉर इन्फ्लुएंजा। इसका मतलब क्या है, वो समझते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद जो डायबिटीज है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको इन्फ्लुएंजा वायरस जो कॉमन फ्लू है उसका भी वायरस दे देते हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं, कोविड वैक्सीन का, आपका कोविड का मेमोरी रहेगा। अगर सेकेंड टाइम इफेक्ट होगा तो आप दोबारा उसको रिएक्ट करके उसको खत्म करोगे, डरना नहीं है, उसमें हो जाएगा। बट ये मैं अभी ओपनली भी नहीं कह सकता कि इज इट मस्ट और नॉट मस्ट, इट इज टाइम इज गोइंग टू आंसर, इट्स एन ऑप्शनल काइंड ऑफ ए थिंग। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड कोविड का ये पूछे हैं किसी ने। ऑटो इम्यून का मतलब है, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का इम्यून सिस्टम खुद को ही अफेक्ट कर रहा है इन ए नेगेटिव वे। अब कोविड में क्या है, एंटीबॉडीज बन गए, 7वें दिन क्या करेंगे, वो एंटीबॉडी अपने ही सेल्स के क्रॉस रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग में, सबको नहीं, क्योंकि दे थिंक द सेम आवर बॉडी सेल्स एज ए फॉरेन थिंग एंड स्टार्ट
एक्टिंग ऑन दैट। जब लंग्स इफेक्ट होगा, सैचुरेशन कम होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, तो वो इम्यून को सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड और अदर मेडिसिन देते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि खुद का इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट खुद ही का एंटीबॉडी काम कर रहे हैं। सो हाउ सेफ वी आर आफ्टर फर्स्ट डेज ऑफ वैक्सीनेशन? हमारे पास यहाँ लाइव उदाहरण है। पहला वैक्सीन उन्होंने लगाया, लेकिन उसमें 3-4 हफ्ते में उनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया। लेकिन अहम बात यह है, 3 चीजें उनकी डिस्कशन से पता चला। एक, वो डरे नहीं। दूसरा, उनको एक वैक्सीन लगा था। तीसरा, वो योगिक सिस्टम फॉलो किया, प्रॉपरली खाना खाया, प्रॉपरली योगा किया, प्रॉपरली भ्रामरी किया, थोड़ा सा जो एंटीवायरल, थोड़े बहुत एंटी इम्यूनिटी किट है, और बहुत सिंपल रहा। वो 3 डेज में सब कुछ ठीक हो गया। सो सेफ्टी नॉट सेफ्टी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि 2 डोज तो कम से कम लेने पड़ेंगे। सो कुछ लोगों को लिटिल कॉफ है, देयर इज नो प्रॉब्लम, डोंट हैव टू वरी अबाउट कॉफ। 2 डोज ऑफ कोविशील्ड, गवर्नमेंट ने जो बोला है उसको फॉलो करें। What are the precautions to be taken after vaccination? There is no precautions. हमने हमारे सारे डॉक्टर भाई बंधुओं को देख लिया है, वो वहां जाके वैक्सीन लगाया, फिर वो भूल गए, आके सब पेशेंट ओपीडी दिखा, उनको 3 दिन बाद पता चला, अरे वैक्सीन लगा था, कुछ हुआ तो नहीं। जहां आप याद करोगे वहां दिक्कत है। और मुझे अभी रिसेंटली याद है, कुछ आर्ट ऑफ लिविंग के भी लोग होंगे, 13 मई को गुरुदेव का बर्थडे होता है, श्री श्री का। तो मैं एवरी ईयर साल में 3 बार तो ब्लड देता हूं, 13 मई को जरूर देता हूं। 13 मई को मैंने दोपहर में जाके ब्लड दिया आराम से, फिर आके ओपीडी देखा, सब कुछ किया, फिर घर आया, सब कुछ, फिर मैंने बोला चलो अब हम इसको फेसबुक पे अपलोड करते हैं, दोज काइंड ऑफ, जस्ट अ मोटिवेशन थिंग। हुआ कुछ नहीं। मैं दिन में 2 बार 2 हॉस्पिटल जाता हूं, कोविड पेशेंट भी देखता हूं, न्यूरोलॉजी तो देखता हूं, मेनली मेरा न्यूरोलॉजी का काम है। अगर कोविड पेशेंट आए तो मैं उनको सबको देखता भी हूं, ऑनलाइन भी देखता हूं, और ऑफलाइन भी जाके मिल के आता हूं, वो भी करता हूं। और तो इसका मतलब ये नहीं है आप वो चीज को लगाया फिर भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब किसी ने पूछा है, एपिलेप्टिक पेशेंट अंडर मेडिकेशन कैन टेक द वैक्सीन? अभी तक कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप ले सकते हैं। चेस्ट पेन होता है कोविड के बाद में, ठीक है, वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अभी तो आपका एक फ्री कोविड प्रोग्राम है, रिहैबिलिटेशन कोविड कोर्स है, 3 दिन का, आधा घंटे का, वो आर्ट ऑफ लिविंग वेबसाइट में देखो, आपको मिल जाएगा, करें वो, उसमें ब्रीदिंग ही है, एक्सपेंशन, वो हो जाएंगे। सो और कोई प्रश्न है तो अमृता देखो, पूछो, ताकि आज कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। क्योंकि बहुत लोग मैंने पहले भी देखा है मेरे अपने टॉक में, क्या आपने तो मेरे वो फेसबुक पे मेरे को चेस कर लेते हैं, बोलेंगे आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया। पता क्या, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैंने जो देख लिया देखा, कोई यूट्यूब में पूछ रहा हो, कुछ और प्रश्न है या किसी और के प्रश्न है तो हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते हैं ना। अभी कोविड के बारे में सबको पता चल गया ना कि कैसे। भैया एक अमित सिंघवी जी का पूछे। प्रश्न है, कैन अ पर्सन स्मोक आफ्टर वैक्सीनेशन? हाँ पूछो। Okay. Can a person smoke after vaccine? It's a very, very good question. First of all, if you're asking me this question, I have a very important question for you. Why are you smoking first? Tell me, why are you smoking? See, it is just asking a person कि मैं पॉइजन खा लूं, ये कोई प्रश्न होता नहीं है। आप ये प्रश्न कभी भी मत पूछें कि मैं स्मोक कर सकता हूं, अल्कोहल पी सकता हूं, मैं जहर खा सकता हूं। जो वायरस के बारे में बात कर रहे हैं वो लंग्स को इतना डैमेज कर रहा है ऑलरेडी। आपको क्या लगता है कि आप वैक्सीन लेने के बाद में आप अमृत पी लिया है? बिल्कुल नहीं। वो स्मोकिंग वैसे ही काम करेगा, जहर के भांति, वो धीरे धीरे खाता है, पता नहीं चलता है। लोग आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छे थे, 20 साल बिल्कुल हेल्दी थे, सिर्फ दिन में 1-1 पैकेट सिगरेट ही पीते थे, कल तक ठीक थे, आज इनको पैरालिसिस कैसे हो गया?
पता क्या, हमारे काउंटडाउन, डेथ का काउंटडाउन तब शुरू होता है जब हम जन्म लेते हैं। सब टिकट कटवाने खिड़की के पास खड़े हैं, देर सवेर आपका खिड़की, आपका टिकट कट ही जाएगा। लेकिन इस दौरान आप जब रास्ता तय कर रहे हैं, वो कैसे जीना है ये आपको डिसाइड करना है। So I think I have answered about the smoking. So be careful. और बताओ अभिषेक, any other question? अच्छा, कोई पूछेंगे फीलिंग फटीग आफ्टर एवरी डे। देखो, फटीग का मतलब एक ही है, आपका एनर्जी लेवल थोड़ा कम है। आप भस्त्रिका कीजिए, प्राणायाम करिए। हमको लगता है कि ये सारे डिजीजेस हो रहे हैं इसलिए एनर्जी कम है, नहीं, एनर्जी कम है इसलिए ये डिजीजेस हो रहे हैं। आपका एनर्जी हाई करिए, आपका सारा कुछ बॉडी पेन वगैरह ठीक हो जाएगा। हाँ, किसी ने लिखा फर्स्ट वैक्सीन के बाद कोविड होगा क्या? सेकंड वैक्सीन के बाद भी होगा। हमारे पास क्या करें, डॉक्टर हैं उनको पहले सितंबर में कोविड हो गया, फिर उसके बाद में उन्होंने 2 वैक्सीन हो गई फरवरी और मार्च में। वो कोविड का वार्ड देखते हैं, 2 दिन पहले उनको पॉजिटिव हो गया। अब देखो, उनको लग गया, पहला कोविड हो चुका, 2 वैक्सीन लग चुके, अब दोबारा उनको कोविड भी हो चुका, अब वो क्वारंटाइन में है। तो इसका कोई पता क्या, अभी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या है, वायरस दोबारा हो सकता है, वेरिएंट हो सकता है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट लड़ सकते हो। एक कोई सीआरपी वैल्यू पे बात किया है। सीआरपी का मतलब है सी रिएक्टिव प्रोटीन। जहां पे भी आपका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है, उसमें सीआरपी बढ़ जाता है। अगर सीआरपी, सिर्फ खाली सीआरपी बढ़ा है, आप सिम्टम से सब ठीक है, तो आप चिंता नहीं करें, वो कम हो जाएगा। लेकिन सीआरपी बढ़ने के साथ में आपका ऑक्सीजन कम हो गया, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया, फीवर ज्यादा हो गया, that is the right time to start steroid for you. So in all the news channel, third wave is happening. देखो, वेव का तो नाम दिया हुआ है ना, जहां लोग ज्यादा इफेक्ट होते हैं उसका, आप जैसे एक कोई इन्फेक्शन होता है, पीक हो गया, फिर डाउन हो गया, ये वेव खत्म हो गया, फिर अगली बार फिर वेव होगा, उसको थर्ड कहेंगे, अगली बार फोर्थ कहेंगे, फिफ्थ कहेंगे। ये नाम में क्या रखा है? सिर्फ आपको ये देखना है कि आप कैसे बचना है उससे। अच्छे से मास्क पहनिए और यौगिक लाइफस्टाइल जिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली पता क्या, कल किसी ने हमें बताया कि वैक्सीन, नए वैक्सीन आ रहे हैं, सेकेंड डोज, पैन कोरोना वायरस वैक्सीन। हाँ, ये एक चीज तो मैं बताना भूल गया। पैन कोरोना वैक्सीन मतलब जो 2003 में भी हुआ था एपिडेमिक सार्स कोव वैक्सीन का, उसके पहले भी हुआ था, 2013 में मर्स हुआ था, अभी ये सार्स कोविड-19 हो गया है। ये सारे कोरोना जितना भी वैक्सीन का फैमिली है, उसके अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाने की तैयारी है। वो आपको उसको भी खरीदना पड़ेगा। उसको कहते हैं पैन कोरोना वायरस वैक्सीन। तो मैंने तो वापस उसको रिप्लाई किया है, सी इट इज अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Who is creating the demand? अब हमें आज तक ये पता नहीं है कोरोना वायरस एनिमल से आया है, लैब क्रिएटेड है, लैब से जंप हुआ है, वायरस से जंप हुआ है, पर्पसली किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। ये तो सब होशियार है, उनको समझ में आ ही जाता है। लेकिन हमको ये देखना है कि हम ये डिमांड और सप्लाई चेन को खत्म कैसे करना है, हम कैसे रहें, ये हमारे पे निर्भर है। वायरस आता रहेगा, लेकिन उसको मारने की शक्ति तो हमें तैयार करनी है अपने बॉडी से। ये मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं। अगर हमको ऐसा सिस्टम, रोबो सिस्टम हमारे बॉडी का बना लें, वायरस आएगा तो भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। सो आप बोलते हैं कि 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, अभी 10 मीटर्स तक जाएगा। अब देखो, लर्निंग है ना, मैंने बोला कि अभी तक पीएचडी किसी ने भी हासिल नहीं की इसमें। तो ये वायरस ऐसे चलता रहेगा। आज 3 फीट हो गया, फिर अभी 60 फीट तक आ गया। देखो, हवा का झोंका जहां जाएगा, वो वायरस का कोई
Am I audible? Yeah, I think few people are writing. I can't hear. Please check on your side. So हमको ये देखना है कि वायरस तो हवा का झोंका से वायरस कहीं पे भी जा सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? सो अमित गुप्ता ने हाथ खड़ा किया है, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। या डॉक्टर साहब, मेरा छोटा बेटा टोरंटो में है, उसने पहली डोज लगवा ली है एस्ट्राजेनेका की। उसको अप्रैल में आना था, उसकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो अब वो कह रहा है कि मेरी सेकेंड डोज अगस्त में वहां ड्यू है, तो अभी उसकी छुट्टियां हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर 15 जून के आसपास जैसे फ्लाइट्स वगैरह खुलती हैं तो इज इट सेफ? आप सजेस्ट करेंगे उसको बुलाऊं या उसको वहीं रहने दूं? देखो, जब फ्लाइट खुली है जी, क्यों खुली है? ट्रैवल करने के लिए, खाली तो नहीं आएगी। वो कह रहा है कि ट्रैवल में बहुत रिस्क है ट्रैवल में। बस अगर देखो वो स्कैम में बोला ना, रिस्क है तो इश्क है, या इश्क है तो रिस्क है, पता नहीं कुछ डायलॉग बोला था। ठीक है, तो क्या हो गया? अगर वो आना है, अगर अच्छा है, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने वैक्सीन लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि ये मैं रिजर्व रखता हूं, मैं किसी को बताया नहीं है, और मैं बहुत ट्रैवल करा भी हूं इस दौरान जी। तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर वो अच्छे से मास्क पहनेगा, प्रोटेक्शन रखेगा, एक वैक्सीन लेगा, यहाँ आके क्वारंटाइन करेगा, तो आ सकता है। लेकिन घबराता है, मैं कैसे आऊं, दुविधा है, तो फिर आप सोचें, क्योंकि जीवन में मेरे हिसाब से 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। अब समझो कि आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं क्योंकि आप श्योरिटी नहीं है, ठीक है, अच्छी मैं बात तो चाह रहा हूँ सब वो आ जाए, लेकिन अब मेरे आंसर के बाद में भी श्योरिटी, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं आप जो पूछे हो ना, बहुत लोगों का ये प्रश्न है, और बहुत लोग क्या करते हैं, उनका आंसर उनको वो चाहिए होता है जो कि उनको कंफर्ट दे दे। हाँ जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आए, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में, उसको याद आ रही है, तो बेशक प्रोटेक्शन लेके आ जाए, कोई बात नहीं। अगर उसको बोलते कि उस पे वो करना है, तो आप सोच लीजिए, क्योंकि हमारे पास कुछ सर्जरी के पेशेंट्स आते हैं। मैंने बोला मैं सर्जन नहीं हूं, मेरे पास क्यों आए इस पे? एक्चुअली वो है ना, वोटिंग करते रहते हैं कि देखते हैं कि कौन, उनके मन में रहता है कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी है। वो ऐसे डॉक्टर ढूंढेगा जो बोलेगा कि सर्जरी ना कराएं। लेकिन मेरा एक बहुत ही सिंसियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, तुम यही चीज पूछ रहे हो कि भाई तुमको सर्जरी नहीं करानी है, लेकिन मेरा आंसर नहीं होगा, इसमें आया है सर्जरी करा लो, जाओ। अब मेरी बात तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, तो मेरे महीने बाद में बताना। वो बहुत बार होता है कि वो और अगला ओपिनियन के लिए जाता है, बोलता है कि अरे उन्होंने नहीं बताया था, फिर 2 साल के बाद उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो ये बात है, दो वैक्सीन मिक्स तो नहीं करवा सकते ना? मतलब उसने एस्ट्राजेनेका लगाई है तो यहाँ आके वो कोवैक्सीन नहीं लगवा सकता ना? नहीं। ओके। सो हाँ, अभी यहाँ से किसी को मैसेज किया है, पुष्पा झा, बात करना है। देखो, अगर आपको जनरल सबके कुछ पूछना है, आप ओपनली पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करें, पूछ लें, ऐसा प्रश्न पूछें जो सबको हेल्प होए। जय गुरुदेव भैया। हाँ, आगे बोलते रहें बस। भैया, मुझे ना 10 दिन पहले से थोड़ा फीवर आ रहा था, 97-98 करके। तो मुझे लगा ऐसे जनरल सा है, तो मैं इसको ध्यान नहीं दी। फिर ना मुझे एक दिन अचानक से 5 दिन बाद बहुत ज्यादा इतना वीकनेस होने लगा, जो लगा मैं अब उठ नहीं पाऊंगी, इतना सांस धीमा चलने लगा, एकदम बेजान सी मैं ऐसे हो गई। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने किसी डॉक्टर से बात किया, तो वो तो इतना ज्यादा घबरा दिए मुझे, जो आप पहले ऑक्सीमीटर ये वो एक्स्ट्रा चलेगा। मैं तो 2 मिनट के अंदर मेरा दिमाग काम करना बंद कर, लेकिन मेरे पास कवासूर ये सब था, तो मैं लेना शुरू कर दी घर में जो था, क्योंकि मैं पहले से किट लेके भी रखी थी। तो मुझे ना अब RT-PCR मैंने करवाया, तो उसमें नेगेटिव आया। अब मुझे ये बताइए भैया, जब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा आज 5वां दिन है कवासूर ले करके। अब मैं परेशान हो रही हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? देखो, मैं एक्चुअली उस बात पे आने वाला था। कोई गगन नाम से बहुत अच्छा उन्होंने बोल भी दिया है। मैं पहले ही आपका, जब आपने 97-98 बोला, तो मेरे चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ गई थी। 97-98 पुष्पा जी फीवर है ही नहीं,
जी जी जी। ये भैया पहले मैं तो आपको इसलिए इसको कोविड ना है ही नहीं। सीरियसली नहीं ली, मैं सीरियसली बिल्कुल नहीं ली, लेकिन ना मैं इतनी वीकनेस मुझे अच्छा हो रहा एक मिनट आप, हाँ जी जी ठीक है। अब मतलब देखो, हमारे पास एक काम वाली है, और हमारे पास एक डॉक्टर भी है, हमारे पास एक वार्ड बॉय भी है। वो 14 दिन से छुट्टी लिया हुआ है, और पता है क्या, उनको 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 सिर्फ सिम्टम करके बोला है, और टेस्ट उसने चौथे पांचवें दिन करवाया है, नेगेटिव है। वो बोलते सिम्टम है। 14 दिन बाद उनकी एंटीबॉडी हुई, वो भी नेगेटिव है। उन्होंने 14 दिन एंजॉय किया फ्री में, पता है आपको। ऐसे भी अभी केसेस आ रहे हैं जो कि हाँ साइकोलॉजिकली कोविड क्रिएट कर रहे हैं, दो मकसद के लिए। एक उनको छुट्टी चाहिए, एक उनको अटेंशन चाहिए, और ये तीसरे हैं कि वो घबरा जाते हैं। आप देखो कौन सी कैटेगरी में बिलीव करते हो। ठीक है, अब तो आपका 10-12 दिन हो गया है ना। चलो ओके, अभी अगला प्रश्न लेते हैं ना बस। अगर हाँ आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर आई थिंक खत्म करते हैं। भैया वो पूछते हैं डस्ट एलर्जी के एक हाँ पूछे। YouTube से क्वेश्चन है संजय जी का। आई हैव लिटिल कफ फॉर्मेशन इन थ्रोट, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कफ फॉर्मेशन हो रहा है तो। आई हैव लिटिल, कैन यू रिपीट? कफ फॉर्मेशन इन थ्रोट, कफ नहीं ठीक है, उसमें तो फीवर नहीं है, तो इसमें प्रश्न क्या हुआ? अच्छा भैया, बहुत सारे क्वेश्चन एक चीज को लेके है कि एग्जैक्ट उन लोग हाँ पूछो। चीज मांग रहे हैं कि कोविड के बाद क्या करना चाहिए, कोविड के टाइम क्या करना चाहिए। तो इसी के अराउंड सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं चैट बॉक्स में और यूट्यूब में भी। तो एक बार भैया आप एक बार एक हाँ बस सिनॉप्सिस दे दें तो लोग एक बार में ही सबका क्लियर हो जाएगा। चलिए जी बता देते हैं सिंपल में। अगला 2 मिनट सब लोग सुन लें। सबसे एक उसके पहले किसी ने लिखा कि मेरा माउथ कड़वा टेस्ट है, तो क्या ये ब्लैक फंगस है? ये बिल्कुल नहीं है ब्लैक फंगस, फॉरगेट करिए उसको, वो ब्लैक फंगस नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले आप आज से नियम बना लें, जब तक धरती पर जिंदा हैं, पहले अपने खाने का ध्यान देंगे कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, और किस वक्त खा रहे हो। उसमें मैदे वाली चीजें, चीनी वाली चीजें, जो वाइट चीजें जो भी होती हैं, जो इम्यूनिटी कम करती है, उसको अवॉइड करें। सेकंड, फ्रेश फूड खाइए और स्टेल फूड नहीं खाइए, जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड होता है। ह्यूमन बीइंग इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड, ह्यूमन बीइंग इज मेंट फॉर वेजिटेरियन फूड। और तीसरा है टाइमिंग। हाँ राइस खाएं, राइस खा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसका भी एक है ना, पॉलिश्ड राइस खाएंगे, बासमती रोज खाएंगे तो प्रॉब्लम है। गांव में खाएंगे, अगर तमिलनाडु में मैं ये कह दिया तो मेरा तो वो ऐसे कर देंगे। नहीं, वो वहां पे जो बॉइल्ड राइस, अनप्रोसेस्ड राइस, अनपॉलिश्ड राइस है, वो बिल्कुल खाएं। इट इज a very good food, very good source for minerals and vitamins, no problem. That doesn't come under this white. Polished rice come under that white phenomena. Timing, रोज 12 से 13 घंटे नियम बनाए कि फास्टिंग रहेंगे। शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, पानी के अलावा कुछ नहीं। दूसरे दिन 8 बजे। नहीं हुआ प्रैक्टिस करें। ये हो गया। सेकंड, सुबह रोज आप अपने शरीर पे 1 घंटा नियम से इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं वर्क फ्रॉम होम हूं, मैंने ईयरफोन लगाया और घूमते घूमते काम कर रहा हूं। वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो काम के दौरान आप वॉक कर रहे हैं, वो इंक्लूड नहीं है। अगर मैं हॉस्पिटल में 10 चक्कर ऊपर नीचे काम कर रहा हूं तो वॉकिंग नहीं है, वो काम का प्रोसेस है। सुबह उठ के योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान 1 घंटा रोज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा अभी टाइम नहीं आया, अभी मैं 50 साल का नहीं हूं, करा नहीं। देख लो, कोविड में लोग अंदर बैठ के पत्ते के जैसे कांप रहे हैं। मैं बाहर कैसे जाऊंगा, मेरा क्या होगा, फोबिया हो गया है। 1 घंटा आप इन्वेस्ट 100% करना ही करना है प्राणायाम, और सीखें, इसके लिए बहुत जरूरी है। और ये दो। तीसरा है
बहुत सारा आपके लाइफ में इंप्रेशंस पड़ते हैं, बहुत सारी नेगेटिव खबर पढ़ते हैं, नेगेटिव चीज पढ़ते हैं, नेगेटिव चीज सुनते हैं। इससे आपका मेंटल इंप्रेशंस इतना नेगेटिव होता है, एनर्जी लेवल डाउन होती है। इसको अवॉइड करें। आई थिंक ये 3 में है ना, पूरा जीवन जीने का सिस्टम आपका हो गया। और इसमें भी अगर बीमारी आती है, आपको कर गुजरने की, उससे लड़ने की शक्ति मिल जाती है। बस इतना ही करें, इसके ज्यादा नहीं करें। प्रण लेके जाएं आज कि मैं अपने जीवन में इन्वेस्ट करूंगा। एवरी डे 1 hour आई विल पुट माई डाइट प्रॉपरली, आई विल डू सम सोशल सर्विसेज आल्सो, so that other people are lifted up. Thank you so much. भैया एक लास्ट क्वेश्चन। जय गुरुदेव। हाँ, हेलो हेलो। go ahead. हाँ भैया, मैं आपने जैसे बोला जय गुरुदेव कि कुछ सर्विस करिए लोगों के लिए। जैसे अब लोगों के मन में फियर है, अब जैसे कुछ सेवा करना चाहते हैं तो हम ओपनली कैसे कर सकते हैं? अब जैसे अब कुछ चीज जैसे कोई बांटनी है किसी गरीब आदमी को या ऐसा कुछ, आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे किया जाए? नहीं, देखो, ये एक्चुअली ऑप्शंस बहुत सारे खुले हुए हैं सेवा के लिए। ढूंढ ले। आर्ट ऑफ लिविंग में इतनी सेवा हो रही है, जहां पे भी आपको लगता है आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इससे आपका जो प्रश्न है वो बहुत वास्ट और डीप है। जो आपको लगता है कि आप दे सकते हो एवरी डे 1 घंटा टाइम, इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल थिंग, प्लस आपको फाइनेंशियल है या किसी को फोन पे हेल्प करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बाहर जाने में ना बहुत ज्यादा कतराए नहीं, रूल्स के हिसाब से चलें, बट आपका प्रोटेक्शन रखें, मास्क प्रॉपरली डालें और हो जाएगा, है ना। एक ऑप्शन है कि हमारे पास एक स्टोर है साउथ दिल्ली में, तो हम क्या गरीब आदमी को उसमें हम कुछ राशन वाशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा दुकान खोल के, जैसे लोग आएंगे ऐसा कुछ करके? ठीक है, ऑफकोर्स। वो तो मैं वही बोला कि ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है ये डिस्कस करने का, बिकॉज दिस विल बी एंटायरली डिफरेंट थिंग। यू कैन टॉक टू योर डिस्ट्रिक्ट टीचर कोऑर्डिनेटर एंड स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। राइट। और ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेसिव कॉफ तो आप, हाँ थैंक यू, एक्सेसिव कॉफ का ट्रीटमेंट तो एज सच कोई टाइम से निकल जाएगा। फिर भी आई थिंक दिस इज अगेन ए डिफिकल्ट थिंग टू आंसर नाउ। एक्सेसिव कॉफ होता है, धीरे धीरे आप, या तो ज्यादा है तो आप लंग स्पेशलिस्ट को दिखा लें, वो अगर इसी से संबंधित है तो वो एसेस करके करेगा, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड वाइंड अप। Thank you so much everybody. If you have any queries and all, you can place on my Facebook page Satwa, इसमें डालिए, फिर देखते हैं, फिर कभी भी मौका मिलेगा तो और कोई टॉपिक लाएंगे इस पे, है ना। यस, अमृता। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर Thank you, साहब। Dr. Saab. Thank you, Dr. Saab. Jai Gurudev. Thank you, it was so informative. Thank you, Doctor. एक बार मैं सबको म्यूट कर देता Sir, हूँ। you should be conduct. Yes, Amrita ji, unmute yourself. Thank you. Sir, you should be so much, conducting sir. such sessions. Thank you, Priya. Yes, amazing session, and we are looking forward for the 4th session, right? थैंक यू भैया। And YouTube में भी जो लोग देख रहे हैं, मैं सबको कहूंगा एक ही चीज जाने से पहले, मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ। जो भी लोग YouTube में देख रहे हैं, मैं सबसे कहूंगा कि ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था इस क्रिटिकल टर्न में। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज के टाइम में जब जैसे कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, तो आप लोग एक सेवा कर सकते हैं। जैसे काफी जन बोल रहे थे कि मुझे कुछ सेवा करना है इस कोरोना के टाइम में, तो आप ये सेशन उन तक पहुंचा दीजिए। ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि इसमें सर ने बहुत ही डिटेल्ड वे में समझाया है कि कैसे इसमें हम एक एक स्टेप ले सकते हैं। कई सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए हैं, तो हम लोग एज अ वॉलंटियर्स ये रोल प्ले कर सकते हैं। लेट्स स्प्रेड दिस सेशन। Definitely. जो भी कुछ भी है, आपके क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो कमेंट सेक्शन से, यूट्यूब में हमारा चैनल है सत्वा टॉक्स, वहां पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जहाँ पे आप क्वेश्चंस लिखें, तो मैं कोशिश करूंगा कि
सर से वो क्वेश्चंस उन तक पहुंचा दो कमेंट सेक्शन के। लेकिन ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लिखना है, यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो भी आपके कंसर्न्स है, जो भी आपके क्वेरीज हैं, ठीक है, जो अगर रह गए हैं तो। एंड सर जब भी आप आते हो, we get a lot of clarity, and thank you so much. Exactly. Sir, thank you, extremely thank you, sir. It was amazing. It was really amazing, actually. Thank you.